Okay, so we were studying about the effects of globalization, and we studied what are the arguments in favor of globalization and what are the arguments in against globalization. So we studied that in general there are more arguments in favor of globalization. Only there are some few arguments that are against globalization, and we studied the impact of globalization on our country and its historical perspective. Now our next important topic, that is the effect of globalization on Bihar, that is our state Bihar. What has been the effect of globalization on Bihar, whether it has affected our state or not affected, or we need to improve our situation more regarding globalization, what steps we can take, all that we'll try to understand. So effect of globalization on Bihar. Just a minute. Yes, Abhishek. हाँ? चवन। अभी ठीक है? Okay. See, the economy of Bihar is changing due to globalization. See, this is true for everywhere. Everywhere economy is changing because of globalization. The effect of globalization can be seen everywhere. No part of world is separate of globalization. Every part of the world is feeling the effect of globalization. So economy of Bihar is also changing due to globalization. For economic development, like other states, Bihar too needs capital and financial investments. देखिए, मैंने आपको कहा है कि it's all about money. Everything runs on money today. Everything runs on money. So even for our state economic development, what we need money. Money has different names. You can call it capital, you can call it finance, you can call it investment, but it's all money. So for economic development, to give better facilities, to give better infrastructure to the people, we need money to build them. भाई आप कैसे बनाइएगा? मेट्रो बन रहा है तो क्या फ्री में बन रहा है? पैसा लग रहा है, हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं। वो पैसे कहीं ना कहीं से तो चाहिए, आ रहे हैं। अब वो हमारी सरकार खर्च कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट कर रही है, बट पैसे तो लग रहे हैं। सो विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन. Everything needs money. So Bihar too needs capital and financial investments. यानी कि बिहार में भी आवश्यकता है कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिससे कि कुछ फिजिकल बने, कोई एसेट बने, कोई बिल्डिंग बने, कोई फैक्ट्री बने, कोई सड़क बने, कोई पुल बने, कोई मेट्रो बने, कोई रेलवेज बने, कोई होटल बने, एनीथिंग, तो तभी तो डेवलपमेंट होगा. तो बिहार टू नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट. मीन्स we need money to do different work. That money when we get from others, that will be called finance. So we need financial investment. अब मेट्रो कैसे बन रहा है? क्या बिहार सरकार के पास इतना पैसा है?
या केंद्र सरकार के पास इतना पैसा है बिहार को देने के लिए? नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें फॉरेन कंपनीज या फॉरेन गवर्नमेंट्स का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से वी नीड इन्वेस्टमेंट। सो लाइक अदर स्टेट्स, बिहार टू नीड्स कैपिटल एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। इसी के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इसी के लिए बार बार ये बात उठाते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होगा कि हमें जो पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार से, उससे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जब ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो सरकार ज़्यादा काम कर सकती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ओनली इन दोज प्लेसेस where there is scope for economic and social development। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ओनली इन दोज प्लेसेस where there is scope for economic and social development। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है? जहाँ की पॉसिबिलिटी हो, जहाँ चांस हो, जहाँ मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो किसी तरह के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट। जैसे आज आप पटना को अगर देखें तो पटना का जो मेन टाउन एरिया है, लाइक कंकड़बाग, बोरिंग रोड, ये सब चीज़ें जो है ये डेवलप हो चुके हैं। अब इनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसीलिए पटना के बाहरी इलाकों को देखिए डेवलप किया जा रहा है। जितने भी इधर देख लीजिए, बाईपास साइड जितने एरिया हो गए, अनीशाबाद, इधर तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि ये सारे पहले अनऑक्यूपाइड जमीन थे, खाली थे, छोटे मोटे मार्केट्स बने हुए थे जिनको कि बड़े बड़े मार्केट शोरूम बनाया जा सकता था। तो देखिए आज लाइन से यहाँ शोरूम बन के तैयार है, खड़े हैं। बाईपास आप चले आइए, पहले पूरा खाली रहता था पूरा। उसी तरह बाहर जो क्षेत्र है पटना का, बिहटा हो गया, चाहे उधर हो गया आपके खगौल, दानापुर, उस तरफ सगुना मोड़। तो जो भी देखिए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? जहाँ की कोई मौका है डेवलपमेंट का, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए, आप कंकड़बाग की सड़क जो है पिछले 20 साल से वो नहीं बनी, वैसे के वैसे है। आप जाइए कंकड़बाग, मेन रोड जो है कंकड़बाग का, मतलब कंकड़बाग इधर का, कंकड़बाग मेन रोड की बात नहीं कर रहे हैं, जो इधर अंदर जो है एरिया जाता है, राजेंद्र नगर जो रोड जाती है, या इधर हनुमान नगर साइड से जाती है। तो वहाँ देख लीजिए, वो सड़क पिछले 20 या 30 सालों से नहीं बनी, वैसी की वैसी है। जब मैं तो पिछले 20-25 साल से वैसा ही देख रहा हूँ। क्योंकि उसमें वो सबसे पहले एरिया था डेवलप होने वाला, और उस समय मजबूत कंक्रीट की रोड बनाई गई थी, और उसके बाद से फिर छोड़ दिया गया। आज तक नहीं कोई हाथ लग, क्यों? क्योंकि अब वहाँ से कुछ मिलना है नहीं, जितना डेवलप होना था हो गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि उसके पहले कंकड़बाग थाना है, वहाँ से गायत्री मंदिर रोड जाती थी, वो बिल्कुल टूटा फूटा सड़क रहता था हमेशा। कंकड़बाग थाना से मुड़ता था लेफ्ट साइड, वो रोड मतलब समझ लीजिए कि रोड नहीं था, गड्ढे का ढेर था। न उधर कोई जल्दी जाता था, झुग्गी झोपड़ी वाले कुछ कुछ रहते थे अपना लगा के, ठीक है। वहाँ पर देखिए अब क्या किया, वहाँ कॉर्नर पर हॉस्पिटल बन गया, मेडिवर्सल हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। अब वहाँ का रोड देख लीजिए, शानदार रोड बन गया है। इतना ट्रैफिक हो गया है वहाँ पर, गाड़ियाँ लाइन से, मतलब आपको मुड़ने की जगह नहीं मिलेगा, इतनी गाड़ियाँ जाती रहती। तो वो रोड देखिए, जो पहले सूना पड़ा रहता था, कोई जाता नहीं था, खाली झुग्गी झोपड़ी था, फर्स्ट क्लास रोड हो गया, गाड़ी चल रही 24 घंटा। तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ? जहाँ की कोई स्कोप था डेवलपमेंट का, चाहे इकोनॉमिक या सोशल। आज आप देख लीजिए, इधर अनीसाबाद आ जाइए, इधर कहीं बाईपास पे चले जाइए, देखिए। तो जो जगह पर जहाँ कुछ हो सकता है, दिल्ली देख लिया, दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ नहीं, दिल्ली के बाहर हो रहा है। दिल्ली कब का भर चुकी है, फिर हुआ डेवलप गुड़गांव, फिर हुआ डेवलप नोएडा, और भी फिर आसपास के फरीदाबाद, मेरठ, बागपत, सोनीपत,
पलवल, बल्लभगढ़, बागपत, सब बाहर के एरिया डेवलप हो रहा है, क्योंकि दिल्ली तो कब की डेवलप होकर वो सैचुरेट हो चुकी है। तो यही कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट वहीं किया जाता है जहां की इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट के चांस होते हैं। फॉर इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश there should be sufficient supply of water, electricity and transport, and then there can be economic development in a state। क्या कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए, यानी इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप होने के लिए, फैलने के लिए, फ्लरिश का मतलब होता है टू ग्रो, टू स्प्रेड। पेड़ पौधे कैसे फलने फूलने लगते हैं, तो फैलने लगते हैं धीरे धीरे, एक पेड़ से 2 पेड़, 4 पेड़ और फैल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लरिश, टू ग्रो एंड स्प्रेड। तो उसी तरह इंडस्ट्रीज को कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज उसी तरह लगें और बढ़ते जाएं। फॉर इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश देयर शुड बी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये बेसिक नीड्स हैं किसी भी इंडस्ट्री को। आपको वाटर चाहिए होता है अपने अलग अलग काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिस पर कि वो चलेगा, और ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसमें रॉ मटेरियल एंड गुड्स का आना ले जाना हो सके। दीज आर द मोस्ट मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज: वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड ट्रांसपोर्ट। तो यही कहा, इसी के लिए देखिए आपको मैंने कहा कि रोड्स इतनी अच्छी डेवलप किया जा रहा है बिहार का, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क ठीक किया जा रहा है और वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जा रहा है। टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश। तो यही लिखा हुआ है, फॉर इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश देयर शुड बी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, एंड देन देयर कैन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ स्टेट। तभी किसी स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। ऑन द सोशल फ्रंट टू देयर शुड बी पीस सो दैट द इन्वेस्टर्स फील फ्री टू पुट इन देयर कैपिटल। यानी कि अगर समाज की बात करें तो शांति होनी चाहिए, तभी जो है कोई आपके यहाँ आके कोई काम करेगा, रोजगार करेगा। रोजगार करेगा और उसको जान का डर रहेगा हमेशा, तो वहाँ रोजगार करने आएगा, वो कहेगा भाई इससे अच्छा कहीं और कर लेंगे। जैसे कि हुआ है, बिहार से सारे बिजनेसमैन चले गए थे छोड़ के बाहर, जहाँ भी आसपास बड़े जगह थे, भुवनेश्वर, जयपुर, यूपी में चले गए, बहुत बहुत सारे चले गए थे एक समय जब यहाँ इतना ज़्यादा क्राइम्स हो रहे थे। तो आपको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस। ये खाली ये फैसिलिटी होने से नहीं आ जाएंगे बिजनेसमैन कहीं भी। दे नीड पीस, दे नीड स्टेबिलिटी, गुड गवर्नमेंट पॉलिसी, सिक्योरिटी। तो यही कहा जा रहा है कि ऑन द सोशल फ्रंट टू, समाज में भी देयर शुड बी पीस, शांति होनी चाहिए, सो दैट द इन्वेस्टर्स फील फ्री टू पुट इन देयर कैपिटल। तो इन्वेस्टर्स को मन में कोई बाधा नहीं लगे, नहीं हम अपना कैपिटल यहाँ लगा सकते हैं, कोई डर नहीं है, हमें खतरा नहीं, हम अपना बिजनेस शांति से कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रिसिटी इनसफिशियंसी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अंडर डेवलप्ड बिहार। देखिए कह दिया कि बिहार का जो अंडर डेवलप होना है उसके पीछे का एक मेन कारण है बिजली की कमी होना। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे यहाँ सफिशिएंट नहीं है। अभी देखिए घरों में तो सप्लाई करने में हालत खराब हो रही है बिहार सरकार। मेट्रो का काम शुरू हो गया है तो घरों में कट ऑफ होना शुरू हो गया है, स्ट्रीट लाइट बंद रहते हैं बहुत जगह, क्योंकि बिजली है नहीं सरकार के पास, तो देगी कहाँ से? बिजली सरकार थोड़े पैदा करती है, बिजली भी सरकार अगर पावर प्लांट होगा तो होगा, नहीं तो फिर बाहर से लेती है, खरीदती है बिजली। तो अब उतनी बिजली हमें मिल ही नहीं रही है तो हम देंगे कहाँ से, सरकार देगी हमें कहाँ से? तो देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब अभी तो आपको मेट्रो का काम एक शुरू हो गया तो लग रहा है कितना बड़ा चीज हो गया है भाई, बिजली की भारी कमी हो रही है। और तो
डेवलपमेंट के लिए आप सोच रहे हैं नए नए इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसमें तो और ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। तो यही कहा जा रहा है एक दो इलेक्ट्रिसिटी इनसफिशियंसी is one of the major causes of underdeveloped Bihar, yet there is wide progress in transport facilities and law and order situation. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी काफ़ी सुधरी है, जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि देखिए यहाँ सड़क इतनी अच्छी हो गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, हमें तो डेली सुबह शाम यहाँ पर फेस करना पड़ता है, इतनी गाड़ियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी आती जाती लगातार। सो ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, कानून व्यवस्था बहुत ही सुधार हुआ है, ठीक है, काफ़ी सुधार हुआ है पहले के समय से। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड सो दैट बिहार कैन प्रोग्रेस रैपिडली। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क, बिजली, पुल, पानी की व्यवस्था, ठीक है, और ज़मीन वगैरह का मिलना उनके लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, या रेलवेज, रोड, ठीक है, सारी चीज़ें जो एयरवेज, तो ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड सो दैट बिहार कैन प्रोग्रेस रैपिडली। प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम had once said, Professor APJ Abdul Kalam had once said, for the development of India, it is necessary and essential that Bihar should be developed. भारत का अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि बिहार का तेजी से विकास किया जाए। इन द प्रेजेंट एरा, in the field of production and consumption, the whole world has turned into one country. आज का जो समय है इसमें जहाँ तक अगर हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें, यानी कि जहाँ चीज़ें बन रही हैं और जहाँ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो कहा जा रहा है कि द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू वन कंट्री। आज पूरी दुनिया एक देश के जैसा बन चुका है। क्या देखिए कोई फर्क है क्या? मैं यहाँ DVD यूज कर रहा हूँ जो कि अमेरिका की कंपनी का है, ताइवान में बन रहा है, दिल्ली में इंपोर्ट हो रहा है, और अमेजन जो कि अमेरिका की कंपनी है वो मुझे यहाँ सप्लाई कर रही है। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, तो आज कोई इसमें रोक टोक नहीं है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं धड़ल्ले से अमेजन से यूज कर रहा हूँ, अमेजन जो कि अमेरिका का कंपनी है वो मुझे ला के दे रहा है दिल्ली से, दिल्ली में आ रहा है ताइवान से, और ताइवान में जा रहा है उसका डिजाइन अमेरिका से। तो आज कोई फर्क, जहां तक हम प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन यानी यूज की बात करें, तो आज पूरी दुनिया एक ही देश जैसा हो गया, जैसे एक ही देश है, कोई रोक टोक नहीं है। मैं HP कंपनी का, अभी मैं गिनाना शुरू करूं, HP कंपनी का मैं सामान यहाँ मंगा रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। मैं निविया का प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, वो कहाँ का है? जर्मनी का है। मैं नोकिया का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वो कहाँ का है? फिनलैंड का है। मैं शाओमी का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको जिससे पढ़ा रहा हूँ, रेडमी, वो कहाँ का है? चाइना का है। मैं सोनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, टीवी है सोनी का, सामने देखिए कहाँ का है? जापान का। तो चीज़ें कहाँ बन रही हैं आज, मतलब एक ही नहीं, छोटा छोटा। अब कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, मेबेलाइन का, रेवलॉन का, कहाँ का है? अमेरिका का है, कोई फ्रांस का है। तो कोई फर्क नहीं पड़ गया है किस देश का सामान है, कहाँ बन रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। अभी तो हम आपके सामने दिखा दिए कि कई देशों का चीज है। देखिए बगल में है जॉकी का पैकेट पड़ा हुआ है, अमेरिका का है। घड़ी है सामने, जापान का है। लैपटॉप है सामने, US का है। मोबाइल है सामने, कोई चाइना का है, कोई कहीं का है, कोई सैमसंग है, कोरिया का है।
सामने ही तो मैंने आपको 3-4 देशों की चीज दिखाई। तो आज पूरी दुनिया जो है एक तरह से क्या है, एक देश बन चुका है इकोनॉमी के मामले में। तो यही इसी बात को कहा जा रहा है, समझ गए। देखिए मैंने आपको खोल के बिल्कुल एग्जाम्पल से समझा दिया। तो यही कहा जा रहा है कि इन द प्रेजेंट एरा इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन द होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू वन कंट्री। एक देश बन चुका है। जैसे पहले होता था कि हाँ भाई कोई सामान है तो हम अपने मार्केट में गए, अपनी कंपनी जो अपने देश की कंपनी है उसका कोई चीज़ खरीद के ले आए, जैसा सभी नॉर्मल देशों में होता है, मतलब जो चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो चाहे जैसे भी। तो आज हम उसी तरह कहीं का भी सामान, मैंने बोला आपसे ऑर्डर किया फट से आ गया। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया वीआईपी कंपनी का, वो हमारा कंपनी है, आ गया। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया जॉकी का, आ गया। अभी मैंने कोई निविया का ऑर्डर किया, आ गया। अभी मैंने कुछ एचपी का ऑर्डर किया, आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस देश में बन रहा है, कहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ उसका मार्केटिंग हो रहा है, और कहाँ की। मैं अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ जो कि यहाँ की कंपनी नहीं, अमेरिका की कंपनी है। तो आज ये सब बातें नेग्लिजिबल हो गई हैं। मैंने कहा ना शुरू में ही कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ वर्ल्ड विथ बॉर्डरलेस मार्केट। बॉर्डरलेस, बॉर्डर्स आज नेग्लिजिबल हो गई है, खत्म नहीं हुई है, नेग्लिजिबल हो गई है, ना के बराबर। दिस इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एविडेंट ऑल्सो इन बिहार। तो ये जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि एक ग्लोबल मार्केट बन गया है, ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है, ये बिहार में भी हम फील कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं तो अभी बिहार में ही हूँ और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। कोई मुझे रोक रहा है, पूछ रहा है कि भाई बिहार से ऑर्डर कर रहे हैं। अमेजन वाला तो लगता है कि इतना यहाँ रोज़ डिलीवरी करता है कि उसको पहचान अपने आप आता है, रख के चला जाता है, न फ़ोन कर, कोई आराम से आएगा जाएगा। वो थोड़े बोल रहा है कि बिहार के हैं कि पटना के हैं कि कहाँ के हैं। कोई रोक टोक है, कोई रहे कि हाँ भाई कभी कोई कहीं से मंगा रहा है, कोई कहीं से मंगा रहा है। बिहार में भी हर चीज़ है जैसे हर जगह है। तो बिहार में भी तो हम इसका इफेक्ट फील कर रहे हैं, बिहार के लोग भी इसका यूज कर रहे हैं। इन द एज ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट emphasis should be put on development so that globalization can show its true colors। तो कहा जा रहा है कि ये जो आज ये जो ऐसा समय है, जो आगे बढ़ने का समय है, जो डेवलपमेंट का, विकास का समय है, ऐसे में हमें विकास पर फोकस करना चाहिए, डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए। एम्फेसिस मतलब बल, जोर देना, जोर देना। तो हमें ऐसे में डेवलपमेंट, विकास पर जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं हमें विकास करना है। और तब हमें ग्लोबलाइजेशन का, ताकि ग्लोबलाइजेशन हमें अपना असली मजा दे सके। जो ग्लोबलाइजेशन का मजा है, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बताया, आपको डिटेल में बताया है कि हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो टॉप क्वालिटी का है, कम रेट में है, और हमें यूजफुल है अपने काम के लिए, चाहे पर्सनल यूज के लिए चाहे बिजनेस यूज के लिए। तो हर कोई देखिए चीजें, हम टीवी देखिए सोनी जापान का है, लैपटॉप देखिए एचपी का है, सब कहाँ की कंपनी, कहीं बाहर की कंपनी है, और हम तुरंत ऑर्डर कर रहे हैं, 2 दिन में हमारे यहाँ वो पहुंच जा रहा है, कोई रोक टोक। बताइए इतना फास्ट जो है कैसे आ रहा है आपके पास, 2 दिन 3 दिन में आपके पास डिलीवरी कर दे रहा है। तो आखिरकार इतनी सुविधा उसे हर जगह मिल रही होगी, सरकार ऐसी सुविधा की है, तभी ना इतना फास्ट जो है डिलीवरी हर चीज़ का हो पा रहा है। उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब बना, तो बिहार में भी लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें बाकी चीज़ों को छोड़ के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए। बट ग्लोबलाइजेशन, besides having its positive impact on Bihar, has its negative effects too.
विच आर एज फॉलोज। लेकिन बिहार के लिए हम देखें तो पॉजिटिव प्रभाव तो है ही इसका, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी क्या है उसको भी देखना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे इसको। द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिहार आर एज फॉलोज। ग्लोबलाइजेशन का बिहार पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है? नंबर 1, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन there has been a rapid increase in agricultural production. Like the country, Bihar too is dependent on the monsoon for its agricultural production. पूरे देश की तरह बिहार भी मानसून पर डिपेंडेंट है। In the year 2009 there has been famine due to less rainfall. 2009 में बारिश कम हुई जिसके कारण हमारे यहाँ सूखा पड़ा। But it is due to globalization that government of Bihar is now capable of confirming that there is abundance of food production and supply. लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है कि आज बिहार सरकार कह सकती है कि नहीं, हमारे यहाँ सही अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन भी है खान पान खाने की चीज़ों का और सप्लाई भी। क्योंकि मैंने बताया आपको कि देखिए बीज की कंपनियां हैं, मॉन्सेंटो और कई कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी की बीज आती है। केमिकल्स, बेयर एग्रोटेक जर्मनी की कंपनी। तो बाहर की कंपनियों के कई तरह के हमें, चाहे वो बीज हो, चाहे वो केमिकल्स हो, दवाएं हो, चाहे वो ट्रैक्टर्स, फार्मिंग इक्विपमेंट हो, मशीन्स हो, ये सब कम दाम में या मोटर पंप्स हो अवेलेबल हो पाए हैं, तो हम उससे अपनी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा पाए और उससे हम आज एग्रीकल्चर सरप्लस हो चुके हैं, हमें खाने की कमी नहीं है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है कि आज देखिए किसान को जिसको जो मन है, जिस कंपनी का आराम से ट्रैक्टर खरीद रहा है, बीज खरीद रहा है, दवाएं खरीद रहा है, मशीन खरीद रहा है। तो आज किसान में भी एक नए अपना एक आइडियाज लागू करने की शक्ति आ गई है, क्योंकि उसके पास उसको मौके अवेलेबल हैं। वो हर तरह के ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर, बड़े, जैसे ट्रैक्टर भी आते हैं छोटे साइज के आते हैं, या इनफैक्ट हाथ से चलाने वाले ट्रैक्टर आते हैं जो छोटे से मशीन होती है, उसको हाथ से लेके आदमी, ऑटोमेटिक होता है, बस उसको हाथ से पकड़ के सपोर्ट करके चलाना होता है। ऐसे भी ट्रैक्टर आते हैं कि जो कम बजट के, और अगर मान लीजिए छोटा किसान है, उसको ज़्यादा नहीं है, तो वो अपना वही यूज कर लेगा बजाय बड़े ट्रैक्टर के। तो हर तरह का मशीन है, छोटा मशीन, बड़ा मशीन, सब तरह का। तो ग्लोबलाइजेशन से ही हो पाया है कि आप आसानी से अपने बजट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो दवाएं हो, चाहे वो मशीन हो, ट्रैक्टर हो, मोटर पंप हो, ये सब खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से इतना जो है सूचना उन्हें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। टीवी के माध्यम से वो, उनके लिए डीडी किसान चैनल शुरू किया गया, तो वो टीवी के माध्यम से, टीवी कहाँ से आता है? तो टीवी भाई बाहर से बन के हर तरह की कंपनी का है, आसान हो गया है ग्लोबलाइजेशन से। तो इस तरह से हमारा फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है। नंबर 2, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो हम विदेश भेजते हैं यहाँ से माल बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन there has been a rapid increase in exports. अब देखिए कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन और उसका डिमांड दूर दूर तक फैला है। भाई आज आसान हो गया है लाना ले जाना। आज टेलीकॉम फैसिलिटीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काफ़ी डेवलप हो गया। आज किसी दूर देश में भी है, उसको यहाँ का कोई चीज़ मंगवाना है तो वो आसानी से मंगा सकता है। तो हमारे सामान का डिमांड बढ़ा है।
और हम भी आसानी से आज बाहर भेज सकते हैं। तो हम अपना सामान देखिए, हमारा ये आम, जैसे आम है, शाही लीची, जो भी बिहार की चीज़ें हैं, वो दूर दूर तक उनका डिमांड जा रहा है और उसको सप्लाई किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, fruits are some of the major areas where Bihar has shown a rapid development. तो कहा जा रहा है कि चाहे वो कच्चे माल की बात हो, या छोटे मोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उनका जो चीज़ें बनती है उनकी बात हो, या फलों की बात हो, ये मेजर चीज़ें हैं जिनका एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से हुआ है। फ्रूट्स लाइक लीची, लीची, शाही लीची फेमस है हमारे यहाँ की, मुजफ्फरपुर साइड की, तो वो दूर दूर तक जाती है। मैंगो, आम, एंड मखाना, मखाना जानते हैं जो तालाब में होता है। तो दे आर सम ऑफ द फेमस प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड टुडे, जिनका कि दूर दूर तक हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ उनकी डिमांड है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, आसानी से कहीं भी सामान भेजा जा सकता है, मंगाया जा सकता है। तो हमारे सामान भी दूर देशों में जा रहे हैं, डिमांड की जा रही है। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, बढ़ा है। मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में डिटेल से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लगता है फॉरेन से, जिसको कि हम देख सकते हैं ऐसी चीज़ें बनने में, फैक्ट्री बनने में, सड़क बनने में, बिल्डिंग बनने में, कोई प्लांट लगाने में, कोई मेट्रो है, कोई पुल है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट फॉरेन से हमारे यहाँ आ पाया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन बिहार बिकॉज ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट। क्योंकि हमने दिखाया है कि हमारे यहाँ तेजी से डेवलपमेंट पॉसिबल है, हमारे यहाँ सरकार की ऐसी इच्छा है, हमारे यहाँ ऐसा माहौल है, ऐसी सुविधाएं हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ड्यू टू द shortfall in the production of electricity, the investors are a little hesitant in investing. तो एक ही दिक्कत जो उसमें आती है, इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वो है बिजली की। बिजली की हमारे यहाँ उचित अभी सप्लाई नहीं है, जिसके कारण कि वो हिचकिचा रहे हैं और अभी कोई मेजर वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजली की हमारे यहाँ जो है वो दिक्कत है। बिजली जो है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल अपना प्रोडक्शन बहुत कम है, बहुत कम, और हमें अपनी भी जो ज़रूरत है डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ख़रीदना पड़ता है बिजली केंद्र सरकार से या दूसरे जगहों से। तो ऐसे में जब हमारे पास, सरकार के पास पर्याप्त बिजली नहीं है और महंगी रेट, हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है, देश में लगभग महंगे बिजली वाले रेट्स में हमारे यहाँ बहुत जगह 2-2 रुपये बिजली है जो है, और बहुत जितनी खोजिए उतनी बिजली है वहाँ। तो बिजली हमारे यहाँ तो महंगी भी है और सप्लाई भी, क्योंकि कम है सप्लाई इसीलिए महंगी है। तो इस वजह से बहुत सारे जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो हिचकिचा रहे हैं अभी यहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट करना। बट दिस सिचुएशन वुड डेफिनेटली इम्प्रूव इन द कमिंग। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये जल्दी ही इम्प्रूव करेगी, ऐसा जो है लगता है, क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है, अपने पावर प्लांट्स को बढ़ा रही है, उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है। ठीक है, और केंद्र सरकार वगैरह से भी जैसा है कि सरकार से अच्छा तालमेल बिठाई। देखिए, आखिर यही सब बातें हैं जिसके कारण मुख्यमंत्री जो है वो आपके भाजपा के साथ अलाइन हो रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है, हमारे सरकार को ज़रूरत है कि हमें केंद्र सरकार से फेवर मिले। भाई, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप गुजरात को, मध्य प्रदेश को और कई राज्यों को 2 रुपये यूनिट बिजली देते हो, तो हमें 10 रुपये क्यों दे रहे हैं?
कितना फर्क है, 2 रुपये मिलता है गुजरात को बिजली और हमें वही 1 यूनिट का 10 रुपये बिहार सरकार को देना पड़ता है, केंद्र सरकार को। तो इनका यही कहना था कि भाई आप हमें भी दीजिए, उस हिसाब से हम भी डेवलप करेंगे, ठीक है, लेकिन वही है कि पॉलिटिक्स वहाँ आ जाती है। तो ये हाल है कि गुजरात में जहाँ 2 रुपये बिजली मिलती है और यहाँ जो है 10 रुपये में देनी पड़ती है सरकार को। हमसे सब्सिडी लेके सरकार कम लेती है, घाटा बर्दाश्त करती है। तो बिजली की कमी जो है एक इसमें अड़चन, ऑब्स्टेकल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज नंबर 4, इंक्रीज इन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, कहने का मतलब है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा। वही चीज़ है कि उसको पर कैपिटा भी कह दिया गया है, और ऐसे कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा है एसडीपी, तो उसके कारण जो है वो कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अच्छा प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर गुड्स। जो अभी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास आज वर्ल्ड का टॉप क्वालिटी का सामान यहाँ मुझे अवेलेबल हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मुझे ज़रूरत थी अपने टैब के लिए उसके पेन के पार्ट की, तो वो चाइना से आ गया, यहाँ चाइना से इंपोर्ट हो गया है। मुझे समय लगा, 15 दिन लगाया, क्योंकि उस समय चाइना पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी किए हुए था सरकार, तो बोला कि मिनिमम 15 डेज लगेगा अमेजोन जो है, लेकिन ला के दिया। वैसे ही मैंने आपको तो और अभी उदाहरण दिए है कि सब देशों के कंपनी के सामान आ रहे हैं। देखिए, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर गुड्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। तो आज मार्केट में भी, चाहे आप ऑनलाइन मंगाइए चाहे मार्केट जाइए, अवेलेबल हो पा रहा है। डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनी प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स, शूज, गारमेंट्स, food products, cars and various electronic goods are easily available in Bihar। ये easily available हो पा रहा है चाहे बिहार में या कहीं हो, तो it is a good positive effect of globalization। Number 4, increase in employment opportunities। से रोजगार भी बढ़ा है। आज देखिए इतने सारे डिलीवरी बॉयज घूम रहे हैं बाइक लेके, इतने सारे कस्टमर कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं लोग, इतने सारे जो आपके तरह तरह की बड़े बड़े मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इन सब में काम कर रहे हैं लोग, सबको नौकरी मिला है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर हैज बीन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Highly educated and skilled laborers are getting better opportunities of employment outside the country। तो आज हमारे यहाँ के भी जो अगर कुशल कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, उनको दूर मतलब बिहार या बिहार देश में ही अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर अलग अलग देशों में भी बहुत डिमांड हो रहा है। देखिए, और विश्वास कीजिए, बिहार के जो वर्कर्स हैं उनकी हर जगह डिमांड हो रही है। मैंने कश्मीर में देखा, सोचिए कश्मीर में मैंने बिल्कुल बॉर्डर के पास से देखा कि वहाँ बिहार के भरे हुए हैं और काम कर रहे हैं लोग, वहाँ कारपेंटर्स और हर तरह के लोग, क्योंकि वहाँ लकड़ी का ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में लकड़ी का काम बहुत होता है, तो लकड़ी डेवलपमेंट में वहाँ लकड़ी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से भरे हुए मैंने देखा, एक गाड़ी भर के जो है आ रहे थे लोग, कारपेंटर्स और तरह तरह के काम करने वाले। तो क्योंकि काम अच्छा करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो आज हर जगह, बल्कि ये लोग वहाँ रहते थे उधर तो उनका एरिया का नाम बिहारी कॉलोनी ही पड़ गया था, कश्मीर में भी मैं बता रहा हूँ। तो हर जगह जहाँ हो, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर, तो हमारे जो कुशल कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, अलग अलग तरह के, चाहे इंजीनियर्स हैं, उनको हर जगह जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल रहा है।
The many software engineers of Bihar are working in foreign countries, especially USA, इंग्लैंड। सही बात है, हमारे बहुत सारे जाए तो सब विदेश में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे किसी भी उसका हो, इंजीनियर हो तरह का, तो वो सब हर जगह काम कर रहे हैं, चाहे देश के अंदर हैं देश के बाहर हैं। तो उससे रोजगार भी, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण इतना काम मिल पाया है कि बिहार के भी लोग हर जगह काम कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, तरह तरह की बैंकिंग और इंश्योरेंस की कंपनियां भी आज बिहार में भी ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। It is the effect of globalization that many new banking and insurance companies have come forward to establish themselves। तो वो यहाँ अपना काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। देखिए इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, हालांकि HDFC तो यहाँ का है, फिर और बैंक्स हैं जैसे क्या नाम है, कई तरह के बैंक्स हैं। अब तो लोकल भी यहाँ भी कई तरह के नए बैंक्स हैं। तो जनरली डॉइच बैंक है और इंडसइंड बैंक है, HSBC है, यहाँ तो नहीं है शायद HSBC का, और आपका ये सब तो यहीं का है। खैर, तो ये तो हो गई बैंकिंग में। उसी तरह इंश्योरेंस में कंपनीज जो हैं कई सारी, तो आज बाहर से यहाँ हर तरह की कंपनियां आके चाहे बैंकिंग के फील्ड में और इंश्योरेंस के फील्ड में जो है काम कर रही हैं। इन बिहार मेनी इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ देखिए नाम दे ही दिया, इन कोलैबोरेशन विथ वेरियस इंडियन कंपनीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल बजाज अलायंस, हाँ देखिए जैसे बजाज है और अलायंस बाहर का है, ठीक है, फ्रांस का है शायद, या जर्मनी का है। तो बजाज और अलायंस मिलके इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं, बजाज अलायंस। बिरला सन लाइफ, बिरला यहाँ की है, सन लाइफ बाहर के। टाटा AIG, देखिए हाँ AIG अभी हम इसी का यूज करते हैं, टाटा AIG का इंश्योरेंस है हमारा। तो टाटा यहाँ की कंपनी है, AIG बाहर की। अवीवा ये बाहर की कंपनी। ये सब जो है आपके बिहार में आज ऑपरेट कर रहे हैं। द मार्केट्स ऑफ बिहार हैव नाउ बीन फ्लडेड विथ वेरियस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। आज बिहार के मार्केट में इंटरनेशनल प्रोडक्ट भर गए हैं। वेरियस हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज आर ईगर टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन बिहार। बहुत सारे, चाहे वो हायर एजुकेशन के कंपनी, देखिए आज पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन बहुत तरह का जो है बाहर की कंपनियां यहाँ अपना इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं या इंडस्ट्रीज यहाँ लगाना चाह रहे हैं। The skilled laborers of Bihar are in great demand around the world and are getting good opportunities of employment। तो यहाँ के जो मैंने कहा पहले ही बात की, जो गुड ट्रेंड वर्कर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, उनका पूरी दुनिया में अच्छा उनका एक रेपुटेशन है, मांग है, डिमांड है, और उनको अच्छे नौकरियां हर जगह रोजगार मिल रहा है। In the recent years, the infrastructure of Bihar is attracting the tourists, which is eventually increasing the rate of capital investment in Bihar। आज हम इसीलिए देखिए टूरिज्म पर भी बीच में बहुत फोकस था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले तक टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि टूरिज्म भी एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आप खाली थोड़ा सा अच्छे से डेवलप कर दीजिए, मेंटेन कर दीजिए, इनकम बहुत होता है। इसमें हमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना पड़ता है। जहाँ सड़क है थोड़ा सड़क ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा वहाँ फैसिलिटीज़ डेवलप कर दीजिए, तो टूरिस्ट जो है आना जाना शुरू कर देते हैं, और टूरिस्ट के आने जाने से तमाम जो है वहाँ का इकोनॉमी डेवलप हो जाता है। तो टूरिज्म भी हमारा एक मेन फोकस रहता है, जिस पर हम सरकार हमारी काफ़ी ध्यान देती है, इसलिए टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है। तो उससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जगह जगह देखिए उसके कारण सड़कें अच्छी हो गई हैं, उसके कारण बिजली वगैरह की सप्लाई वहाँ अच्छी, उसके कारण वहाँ होटल बन गए हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवेज डेवलप हो रहे हैं, फ्लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। तो ये सब हमारा कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण।
अब हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट कि कुछ नुकसान क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन से बिहार में, उनको समझें। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको, जैसे मैं जॉकी का कह रहा था आपको, और फिर मैंने एक वीआईपी कंपनी है हमारे यहाँ की, वीआईपी जिसका गारमेंट्स वगैरह आता है, उसका मैंने मंगाया और वो आपको जॉकी को बीट कर रहा है क्वालिटी। उसके कुछ प्रोडक्ट जो मैंने मंगाए जॉकी से बेहतर है। तो देखिए कैसे ये आज इंटरनेशनल कंपनी को हमारी कंपनी बीट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसके भाई, उसने जब ये किया अपना क्वालिटी इंप्रूव करने का सोचा तब ना, कि हम लोग जॉकी के आगे, सही बात था कुछ समय पहले तक दुनिया की बेस्ट जॉकी से बढ़िया हम मानते ही नहीं कि कोई दे सकता है कहीं, जिस तरह हम लोग को, मतलब हम लोग जिस तरह का खोजते हैं। अब बहुत रिच लोग हैं तो उनके लिए बहुत ये नहीं होता है कि बहुत लंबा कोई प्रोडक्ट टिके या ये करे, तो उनका पैरामीटर्स अलग हो जाता है, रिक्वायरमेंट अलग हो जाता है। तो वैसे में तो और बहुत कंपनियां हैं जो जॉकी से अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो कहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स होता है कि वी नीड क्वालिटी एंड ऑल्सो वी नीड लॉन्ग लास्टिंग, तो वैसे में जॉकी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अभी देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि वीआईपी कंपनी प्रोडक्ट जो है जॉकी से भी बेहतर, फार बेहतर। तो दिस इज कि हमारी कंपनी भी compete कर रही कि नहीं, हमको बेहतर प्रोडक्ट बनाना है। पुरानी कंपनी है हमारे यहाँ की वीआईपी। तो इस तरह से देखिए कंपटीशन होता है मार्केट में, तो प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते हैं। हमारे यहाँ की भी कंपनी जो है करती है और हो सकता है उससे बेहतर प्रोडक्ट बनाती है। चलिए नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिहार आर एज फॉलोज। नंबर 1, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। थोड़ा क्या हुआ है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज पर हमारा फोकस बढ़ता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर हमारा झुकाव बढ़ जाता है, तो एग्रीकल्चर को लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, नजरअंदाज करने लगते हैं। क्या कारण है? तो कारण ये है कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होता है और एक लिमिट के बाद, यानी देखिए एग्रीकल्चर का जनरल जो डेवलपमेंट का रेट होता है 4%। 4% मतलब मैक्सिमम रेट होता है, 3% के आसपास रहता है हमारा, कभी 2 भी हो जाता है। 4%, 4.5% उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। तो अब सबको पता है कि एग्रीकल्चर में कितना ही करेंगे तो उतना ही डेवलपमेंट होगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, न पॉसिबल नहीं। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा परसेंटेज पॉसिबल होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ ज़्यादा होता है क्योंकि मशीन्स वहाँ होती हैं। तो इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, उससे अच्छा हम इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट कर लें। ज़मीन है जहाँ तो लोग सोचते हैं कि अरे खेती बाड़ी करके कितना इसमें हम फायदा कमाएंगे, उससे अच्छा यहाँ उद्योग धंधे लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, होटल वगैरह लग जाएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो रहा है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट के दौड़ में। बिहार इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, जान ही रहे हैं। बिग इंडस्ट्रीज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ओवर हेयर, यहाँ हमारे बड़े उद्योग तो है नहीं बिहार में। बट द इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इन डिमांड ओवर हेयर, but in spite of globalization people are not very keen to invest in
एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हिचकिचाते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें ग्रोथ फास्ट नहीं होता है, स्लो ग्रोथ होता है। नंबर 2, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरा जो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो मैंने बताया कि चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं, उनका सामान सस्ता हो जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो घरेलू है उद्योग, छोटे मोटे कहीं झोपड़ी वगैरह से छोटा किराया लेके कमरे से बंद चलता है, या छोटी मोटी बिल्डिंग वगैरह बना के चलता है। उनके सामान थोड़े महंगे पड़ते हैं, खर्च क्योंकि उनका महंगा पड़ता है, उतना इफिशियंसी उनका होता नहीं। तो इनको खतरा होता है क्योंकि ये compete नहीं कर पाते हैं, तो ये खतरा होता है कि ये बंद हो जाएंगे या फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इन बिहार आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल। यानी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो छोटे उद्योग धंधे हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, घरेलू उद्योग धंधे हैं, बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे यहाँ। Due to globalization, the products of these small scale industries do not reach the market because of competition from the international companies, which are better and available at a cheap rate. तो चूँकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है और चीपर रेट पर अवेलेबल है, तो लोकल प्रोडक्ट्स की मांग जो है घटती चली जाती है। आज देखिए जितने टेलर्स थे, आज उनका सबका बिजनेस बहुत डाउन है। कुछ जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेलर्स हैं, जिनका बहुत स्किल है, वही आज चल रहे हैं। नहीं तो जब से रेडीमेड का आया, और सही बात, क्योंकि आप सिलवाने जाइए कपड़ा आपको बहुत महंगा पड़ता है, आप सिलवाने जाइए तो महंगा ज़्यादा पड़ता है, और उसके बाद उसको आपको वैसा सिलाई मिलेगा नहीं जैसा उससे काफ़ी कम दाम में आपको बाज़ार में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव मिल जाए। तो ये पूरा टेलर्स को कर दिया बेरोजगार, रेडीमेड इंडस्ट्री। वहाँ से एक से कंपनी से वहाँ एक स्टाइल में एक डिज़ाइन बिल्कुल बन के और एकदम लेटेस्ट कट में जो है सिलाई होता है। आप देखिएगा तो रेडीमेड का स्टिचिंग देख के आपको, और फिर अपना स्टिचिंग करवाइएगा किसी से, उसका देखिए बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो क्यों लेगा आदमी, और सस्ता भी पड़ता है, ज़्यादा बेहतर कपड़े भी उसमें, डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, सब चीज़ मिल जाता है। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट जब मार्केट में अवेलेबल है, अब जैसे आपको मैं नहीं कहा कि भाई मुझे कोई कहेगा कि वोल्टास का ले लो, बजाज का ले लो, हम तो नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। जब मुझे क्रॉम्पटन का मिल रहा है, जब मुझे सोनी का मिल रहा है, और बहुत सारे ब्रांड हैं उनका मिल रहा है, तो मैं लोकल ब्रांड का क्यों लूँगा। तो ये होता है कि आपको compete करने में मुश्किल तो होता है, ये कंपटीशन बढ़ाता है, तो लोकल कंपनीज का मार्केट घट जाता है, उनकी डिमांड घट जाती है। देखिए आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द चाइनीज टॉयज आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि जो उनकी क्वालिटी होती है और उसका प्राइस होता है इतना कम होता है। चाइनीज प्रोडक्ट्स तो मतलब क्या कहें जी, इतना कम दाम हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में, और उससे बेहतर फंक्शन आपको मिलेगा। तो पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया चाइना के प्रोडक्ट्स। द चाइनीज मार्केट्स हैव साइडलाइंड द टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चाइना से बने हुए जो खिलौने आते हैं, टॉयज आते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के उद्योग धंधे के जो है उनके टॉयज को बिकना ही बंद लगभग हो गया है। नंबर 3, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा आपको कि जो
कम स्किल्ड लोग होते हैं उनको फिर रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि भाई हर जगह से लोग काम करने के लिए तैयार है। ड्यू टू इंटरनेशनल कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स फ्लडिंग द लोकल मार्केट, उनकी बाढ़ सी आ गई है हमारे मार्केट में, क्या हुआ है उसके कारण? मेनी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव शट डाउन, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, छोटे मोटे जो उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, बंद हो गए, तो उनका सामान बिक नहीं रहा है तो क्या करेगा, कहाँ से चलेगा? ड्यू टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड, इसके कारण थोड़ी बेरोजगारी भी बढ़ी है। ड्यू टू द स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट people are not ready to pay to unskilled workers on a permanent basis, तो क्योंकि इतना कड़ा कंपटीशन है बाजार में कि लोग जो हैं वो जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको लंबे समय पर काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए ना, बिहार में ही हुआ टीचरों की भर्ती में, पहले सिर्फ बिहार के लोगों को रखा गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया था, फिर हुआ कि भाई बिहार में इतने नहीं हैं टीचर, सब्जेक्ट्स के लिए भर ही नहीं पा रहे, इतने उसमें कैंडिडेट ही नहीं हैं, जितना कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा सीटें थी बहुत से सब्जेक्ट, यानी जितनी सीटें थी उतने कैंडिडेट भी नहीं उस विषय में हो पा रहे थे। और क्वालिटी तो बहुत तरह का सवाल था क्वालिटी पर यहाँ के टीचर्स कैंडिडेट्स को, तब क्या किया गया, खोल दिया गया कि भाई कहीं का भी स्टूडेंट हो, कहीं के भी हों लोग, वो अप्लाई कर सकते हैं, खाली रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बाहरी लोगों को, बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है। बहुत देखिए उसमें विरोध हुआ था, तो कारण है कि भाई आपको कंपटीशन का आज कोई इलाज नहीं, ठीक है, कंपटीशन का कोई इलाज नहीं, कोई भी आज बिना क्वालिटी वाले आदमी को रखने के लिए तैयार नहीं, सरकार भी नहीं है तैयार। 10 और देखिए परमानेंट बेसिस, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर जिनको रखा था हल्ला मचा रहे परमानेंट करो परमानेंट करो, चुनाव के चक्कर में परमानेंट भी कर दिया गया उनको, ठीक है, चल रहा है। अब देखिए, आप देख ही रहे हैं जो नियोजित शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे तो उनका तमाम तामझाम उनको लेके चल रहा है, क्योंकि उनको जैसे तैसे बिना मेरिट के रख लिया गया था, घर के बगल में नौकरी, 5 मिनट में चले पहुंच गए घर से अपना, जब मन हुआ गए, जब मन हुआ आ गए। इधर 20 साल तो वो लोग सब ऐश किए, अब इधर थोड़ा टाइट हुआ है तो भी ठीक है, कौन सा दिक्कत है, घर से 5 मिनट के रास्ते पर स्कूल है, 5 से 10 मिनट के रास्ते पर अपना चले गए। तो इस कारण से जो है बात है कि कोई भी आज परमानेंट नहीं रखना चाह रहा है अनस्किल्ड वर्कर, या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना चाह रहा। 10 अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है दिनों दिन। लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मामलों में पहले पुअर था, इसलिए भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लो हुआ। देयर हैज बीन लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिहार इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर कहें तो हमारे यहाँ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हुआ। दिस इज बिकॉज बिहार लैक्स इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कारण ये था कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी थी, सड़कें हमारे यहाँ अच्छी नहीं थी पहले, बिजली की व्यवस्था डामाडोल थी, ठीक है, एयर फ्लाइट्स की, रेलवेज की। पहले क्या है, बिहार का मतलब ही था लेट, हम ही जब स्टूडेंट थे आते थे उधर, जब पढ़ते थे दिल्ली साइड से ट्रेन से आते थे, पूरा यूपी दिल्ली सब जगह ठीक चलता था, जहां बिहार के बॉर्डर में घुसता था ट्रेन लेट होना शुरू हो जाता, चेन पुलिंग शुरू हो जाता, पता चला चेन वैक्यूम काट के उसका ले गया, वो आएगा तब थोड़ा देर बाद, अब ट्रेन रुकी हुई है कि भाई लाएगा वैक्यूम वाला पाइप तब ना ट्रेन चलेगा, लोग वैक्यूम का पाइप ही खोल के लेके चल जाता था कि जा रहे हैं फिर आएंगे तब तक ट्रेन रुकी रहेगी, ये हाल होता था। उसमें एक छोटा पाइप होता है कनेक्टिंग, जो 2 कोच को जोड़ता है, उससे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वो पाइप खोल के लेके चला जाता था,
कि जब चलेगा ही नहीं ट्रेन जब तक वो लाएंगे नहीं। फिर आया 1-2 घंटे में आराम से सबसे भेंट भाट करके अपना जिससे मिलना था लगा दिया, देखा ट्रेन में कि वैक्यूम बन गया, चला ट्रेन में। बिहार आने का मतलब था, हम लोग तो बहुत कुछ झेले हैं, आते थे तो बिहार में क्या होता था, पहले का जो ट्रेन होता था उसमें जो लाइट होती थी ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन के अंदर लाइट होती थी वो डायरेक्टली ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ी होती थी, यानी डायनेमो बेस्ड होती थी कि ट्रेन तेज चलती थी तो लाइट तेज रहती थी और ट्रेन रुकी तो लाइट भी बुझ जाती थी, डाउन हो जाती थी। हैं? नहीं, इन जनरल देखिए जहाँ बैटरी नहीं होता है तो वहाँ यही होता है। जैसे साइकिल में देखें लाइट लगा हुआ, तो साइकिल में क्या होता है, जब आप साइकिल चलाइएगा तभी उसकी लाइट जलेगी, रुक जाएगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी, या धीमा हो जाएगा तो उसका लाइट भी धीमा हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके मतलब मैग्नेट से वो होता है, मूवमेंट पर होता है, उसमें डायनेमो लगे होते हैं। जैसे जितना तेज घूमेगा उतना ज़्यादा करंट बनता है, और जितना धीमा घूमेगा उतना कम करंट बनेगा, तो बल्ब उतना धीमा जलेगा। तो इतना पहले बढ़िया व्यवस्था नहीं होती थी ट्रेनों में, तो ट्रेन चलते थे तेज तो लाइट जलती थी, ट्रेन स्लो हो गया तो लाइट भी धीमा हो जाता था और फिर बंद भी हो। तो कहने का मतलब था कि दिल्ली से अब तो है, क्योंकि बैटरीज होते हैं बहुत, तो वो बैटरीज पर आपको कांस्टेंट लाइट रहता है, ट्रेन चल रही रुक रही उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग को क्या होता था, दिल्ली से यहाँ तक आते थे बिहार बॉर्डर तक, तब तक चकाचक रहता था सब चीज़, और जैसे ही बिहार में घुसते थे तो लाइट भी नहीं जलती थी, ट्रेन भी स्लो होना, जहाँ तहाँ रोक रहे, या पता चला अंधेरा भी है और उसमें लूटपाट भी होता था। तो वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग बिहार का मतलब ही समझते थे सारी समस्याएं शुरू हो जाना, ट्रेन लेट हो जाना, कितना देर कहाँ रुका रहेगा, जंगल में रुक जाएगा, उसको लूट लेगा, क्या कर लेगा, अंधेरा है लाइट रहेगा नहीं, पानी आएगा नहीं, मतलब हर तरह का थोड़ा दूर ही हमें ट्रैवल बिहार में होता था, लेकिन उतने देर में जो है सब गति दिखा देता था। तो हमें यहाँ जैसे पटना से हमारी ट्रेन होती थी, पटना आते थे हम लोग, 50 किलोमीटर का हमें पटना आने में लगता था ट्रेन से। वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता होता था कि वो 3 घंटे में ट्रेन पहुँचाएगा कि 5 घंटे में कि 6 घंटे में। मतलब एक बार ये हाल हुआ कि 6 घंटे और हम लोग समझे ट्रेन लेट हो गई, हम लोग उसी हिसाब से चलते थे अपने यहाँ से ट्रेन से जहानाबाद से। तो सुबह 11 साढ़े 11 में होती थी यहाँ श्रमजीवी एक्सप्रेस, और हम लोग 6 बजे निकल जाते थे कि भाई 6 बजे निकल जाएंगे, 11 बजे है तो काफ़ी टाइम है, इतना में तो पटना पहुँच ही जाएंगे, मात्र 50 किलोमीटर है। एक बार वो भी लेट कर दिया, 12 बजे पहुँचाया, और हम सोचे कि अब तो ट्रेन चली गई होगी, 11:15 ही टाइम था, संयोग से उस दिन लेट थी ट्रेन, और 5 मिनट के उससे हम लोग को देखे कि अभी खड़ी है, बैठे। तो वी हैव सीन कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या व्यवस्था था यहाँ। मैं तो बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको। तो इस कारण से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हुआ है जितना दूसरे राज्यों में हुआ है, और ख़ास करके जब से बट गया तब से तो और फिर जो है सारे इंडस्ट्रीज चले गए। देखिए, दिस इज बिकॉज बिहार लैक्स इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज काफ़ी डेवलप हुआ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी हर जगह वैसा व्यवस्था नहीं है, अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पटना खाली डेवलप हो जाए, कुछ शहर डेवलप हो जाए, उससे पूरा बिहार नहीं ना डेवलप हम कह देंगे। तो दिस इज बिकॉज बिहार, अब कहें रोड की बात कहें तो रोड तो डेवलप हो गया, रोड हर जगह गांव में अच्छी हो गई है सड़क, लेकिन पता चलता है सड़क बनती है, बाढ़ आ गया तो नॉर्थ बिहार में बाढ़ के साथ बह जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने बताया कि बाढ़ है नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में सूखा पड़ जाता है। देयर इज a lack of good transport facilities, electricity, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ होटल्स एंड एयरपोर्ट्स। होटल की कमी है, अच्छे होटल नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कमी है। सही बात है, दिक्कत है, होटल बढ़िया होटल आपको नहीं मिलेगा, दिक्कत होती है। और उसी तरह एयरपोर्ट का देखिए, पटना एयरपोर्ट आज फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, संख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था।
पटना एयरपोर्ट देख, हाँ, तो इसके कारण है कि लोग फिर बाहर से आते नहीं, दिक्कत होती है, तो ये सब डेवलप करना पड़ेगा। The government of Bihar is trying its level best to improve its infrastructure, but still a lot of improvement is to be done. को सरकार कोशिश कर रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। In conclusion, we can say that the positive impact of globalization on Bihar is much more than its negative impact. इसका फायदे ही ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन के, नुकसान नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी विच हैज़ इट्स ओन प्लेस। तो ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई है जिसको कोई झूठा नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता आज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो है ही। आज देखिए हम इतना होंडा का एक्टिवा चला रहे हैं। होंडा किसका, कहाँ का कंपनी है? जापान का कंपनी। लोग धड़ल्ले से यहाँ सब चल रहे हैं, होंडा से, सुजुकी से, ठीक है, और तरह तरह की कंपनी जो है। तो ग्लोबलाइजेशन तो है, उसको हम कोई ये नहीं कर सकता नहीं है। We have to concentrate more on its positive results than its negative. तो हमें उसके फायदों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो था हमारे बिहार पर ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। देखते हैं एक मिनट। फिर गर्मी कर दिया, वहां भी धूप निकला है। अरे वहां भी धूप निकली है वैसे। हाँ ये सब है। कह रहे हैं कि धूप निकली है वहां भी आज। धूप निकली है वहां भी, यहाँ तो आज धूप निकल गया है। हाँ धूप कर दिया, यहाँ भी गर्मी जैसी कर दिया। धूप नहीं है, ठीक ठाक होता है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, 30-35 के अंदर में होगा। हाँ तो उमस कर दिया एक्चुअली, धूप होने से, बारिश से ना ह्यूमिडिटी बहुत कर दिया। यहाँ पर तो बढ़िया बारिश हुआ, 28 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ हाँ हाँ, कल तक तो था ही। आज सुबह से ही धूप किए हुए है।
Okay. Come. Next topic is economic reforms since 1991. तो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, जो मैंने आपको बताया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उनके बारे में यहाँ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखेंगे। द फाइनेंशियल क्राइसिस can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s. देखिए हो क्या रहा था कि हमारे यहाँ 1980s से, यानी इंदिरा गांधी जी के बाद से, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद से जो चल रहा था यहाँ, जिस तरह से सरकार और इकोनॉमी हमारा चल रहा था, तो काफ़ी एक जो है, क्योंकि कोई वैसा टाइट गवर्नमेंट, मजबूत सरकार, अच्छे नेतृत्व वाली बन नहीं रही थी। ठीक है, सरकारें जो हैं, बीच में कई सारे लोग प्रधानमंत्री बने उस समय, एक एक साल, दो दो साल के लिए। कोई क्लियर कट किसी का नेतृत्व वैसा नहीं था इंदिरा गांधी के बाद। तो ऐसे में, और इकोनॉमी भी जो है वो ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो हुआ क्या कि 91 में एक समय हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हमारे पास मुश्किल से एक हफ्ते का देश का बिजनेस कैरी करने का पैसा रह गया था, फॉरेन एक्सचेंज। और हम पेमेंट अपने नहीं कर पाते, जो टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कैसे आप लोग पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, उसी तरह जब ट्रेडिंग होता है तो कुछ कुछ दिन पर जो पैसा आपका अकाउंटिंग होता है वो क्लियर करना रहता है। जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिंग होता है तो हमेशा कैश नहीं, लेकिन वो हुआ कि चलिए हफ्ते में क्लियर करना होगा, हफ्ते भर का अकाउंट चलता है, इस तरह से होता है। तो वो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया था, क्योंकि विदेशी जो भी आप फॉरेन ट्रेड करते हैं वो किस में होता है, फॉरेन एक्सचेंज में होता है, विदेशी मुद्रा में होता है। डॉलर लेते हैं, वो डॉलर दीजिए, पाउंड दीजिए, 3-4 जो उस समय थे। तो अब चूंकि आप विदेशी कंपनी को कुछ बेचिएगा तब ना वो आपको डॉलर देगा। डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा? हमारे पास डॉलर कहाँ से आएगा? अब मैं यहाँ किसी को कोई सामान बेचूंगा, आप मुझे डॉलर दीजिएगा? एक बात बताइए, आप फीस देते हैं, आप डॉलर दीजिएगा मुझे? बोले सर हम तो यहाँ के हैं, हमारे पास रुपया करेंसी है, वो हम रुपये में आपको दे सकते हैं। इंडिया में किसी को मैं कोई चीज़ बेचूंगा तो वो मुझे क्या देगा? मुझे रुपीज़ देगा, रुपया देगा, करेंसी, इंडियन करेंसी देगा, थोड़े मुझे डॉलर देने जा रहा है। तो डॉलर मुझे कौन देगा? जब मैं किसी फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इंडिविजुअल से, या जिससे भी कुछ ट्रेडिंग करूँगा। तो नेचुरल है कि जब मैं, देखिए आप समझिए इस चीज़ को बारीकी से, मेरे पास डॉलर कब होगा, या आप रुपया समझिए, सीधा पहले इसको अपने यहाँ समझिए, मेरे पास रुपया कब आएगा? जब मैं कुछ किसी को दूंगा, सामान यहाँ के आदमी को बेचूंगा या सर्विस दूंगा, जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ मान लीजिए कोई जॉब करता है तो उसको पेमेंट किस में मिलता है? रुपीज़ में मिलता है। कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो सामान बेचेगा यहाँ कस्टमर को, तो उसको किस में पेमेंट मिलेगा? रुपया मिलेगा। तो मेरे पास अगर रुपया है तो इसका मतलब मैं यहाँ किसी को सामान बेच रहा हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, जो भी है। और उसी तरह जो मुझसे, ठीक है, हाँ इतना समझ लीजिए। तो उसी तरह अब ये समझिए कि मेरे पास रुपया है, मेरे पास डॉलर कहाँ से आएगा? रुपया तो है, पैसा है मेरे पास, लेकिन किस करेंसी में है? तो रुपया तो है मेरे पास, लेकिन डॉलर, क्या मेरे पास डॉलर होगा? यहाँ आम आदमी के पास आप पूछिएगा तो क्या होगा? रुपया होगा उसके पास। तो जैसे एक बार सिचुएशन हुआ हम लोग के साथ,
हम लोग थे कहीं, स्टूडेंट ही थे उस समय, +2 में, पटना में किसी होटल में खा रहे थे बैठ के। तो एक आदमी आ गया, वही खा रहा था, वो भी यहाँ का अच्छा होटल था पटना का। तो बोला कि सर मैं भी हम भी आप लोग के साथ ज्वाइन करें। हम बोले क्यों? हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे, अपना पार्टी कर रहे थे कुछ। तो हम बोले कि क्या बात है? बोला नहीं, हम लोग अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है, आप लोग का बगल में बैठे हुए थे, आप लोग का बात सुन के इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोग से, मुझे यंग लोगों के साथ अच्छा, हम लोग से एज में काफ़ी बड़ा था। तो बोला मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, अलग अलग देश ट्रैवल करना मेरा काम रहता है, तो अभी मैं आया हुआ था यहाँ मेरा घर है पटना में। तो हमने बोला ठीक है, आ जाइए, क्या दिक्कत है, 4 लोग हैं, 5 लोग हो जाएंगे पार्टी में। बोला कि ठीक है, फिर खाने पीने, बोला खाइए पिए अच्छे से। हम लोग का लगभग ख़त्म हो गया था पार्टी, निकलने वाले थे हम लोग। तो बोला कि नहीं नहीं ठीक है, और इन्जॉय करते हैं, आइए ना, हम भी आए हैं। तो कुछ कुछ ऑर्डर किया, ये आया, सब खाए पिए बैठे। फिर हम लोग कहे ठीक है, हो गया, चलिए पेमेंट करते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, आप लोग क्यों, मैं पे करूँगा सब, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, ये हो, ठीक है। हम कहा नहीं नहीं, हम लोग तो अपना पार्टी कर ही रहे थे ना, आप लोग, हम लोग पे कर देंगे, आपको जो अपना करना है कर दीजिएगा। तो नहीं नहीं, मैं ही करूँगा सब, जिद पर। हम कहा ठीक है, जब आप ही को करना है तो कीजिए। तो फिर वो गया काउंटर पर, तो बड़ा यहाँ का नामी रेस्टोरेंट था पटना का, यही डाक बंगला के पास था। तो फिर वहाँ वो जाके मैं देखा कि कुछ बात बात कर रहा है मैनेजर से। फिर वहाँ का कोई स्टाफ आ रहा है, पूछ रहा है कि आप लोग उनको जानते हैं? तो हम बताए कि ऐसा ऐसा है, वो भाई यहाँ खा रहे थे, तो साथ में बोले कि हम भी आपके साथ ज्वाइन कर ले। तो हम लोग बोले ठीक है, इतना ही जानते हैं। बोले क्या हुआ? मैं पूछा क्या बात है? तो नहीं, एक्चुअली वो पेमेंट डॉलर में दे रहे हैं, तो अभी हम लोग डॉलर में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिक्कत है। तो उनका अच्छा, ये क्या इशू है भाई? तो बोला एक्चुअली आज सैटरडे है, बैंक वगैरह बंद हो चुके थे, 2 बजे तक, 3 बजे तक उन लोग का डीलिंग होता है, तो बैंक्स बंद हो चुके थे। तो बोला कि अभी हम लोग इसलिए डॉलर नहीं कर पाएंगे अभी एक्सचेंज। तो क्योंकि 3 बज से ज़्यादा, 5-6 बज गया था, तो इसलिए हम लोग इंडियन ही करेंसी में ले पाएंगे पेमेंट, ये इशू हो रहा है, वो डॉलर दे रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप उनको बोलिए जाके कि हम लोग कर देंगे पेमेंट, हम लोग कैश दे देंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो आया कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग कैसे दीजिएगा? जो एक्चुअली बोला कि मैं तो बोला ना आपको कि बाहर ही मुझे ज़्यादा जाना रहता है, तो मैं डॉलर ही थोड़ा बहुत करेंसी, इंडियन करेंसी रखता नहीं, क्योंकि इंडियन करेंसी का बाहर कोई काम ही नहीं है कहीं। एक बार यहाँ से मैं जहाज़ में बैठ गया, तो उसके बाद कोई लेना देना है नहीं इंडियन करेंसी का, डॉलर ही हर जगह चलता है, कहीं भी जाओ, कहीं भी रुको। तो इसलिए मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग बोल रहे हैं अभी ये डॉलर नहीं ले पाएंगे, तो हम अपने भाई से मंगाते हैं फ़ोन करके। तो हम लोग बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपको दिक्कत है तो हम लोग हम लोग तो कह ही रहे थे कि पेमेंट कर देते हैं। तो नहीं नहीं, आप लोग कैसे कीजिएगा, आप लोग तो मेरे गेस्ट हैं, हम ही करते हैं, मंगा देते हैं। भाई को फ़ोन, फिर भाई को फ़ोन किया, तो भाई बोला कि अच्छा, आ रहा हूँ लेके जो। तो फिर जब भाई उसका लेके आया कैश, तब पेमेंट किया, खूब टिप भी दिया सबको, जो स्टाफ सल्यूट कर उसको 100 रुपये का नोट पकड़ा है। तो खैर खुश हुआ सब जो है। कहने का मतलब देखिए, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताया कि डॉलर आप कहीं भी आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। डॉलर या कोई भी करेंसी जो है, करेंसी का बड़ा ये होता है, जैसे अब यहाँ आप किसी को कुछ देंगे करेंगे, तो वो इंडियन ही करेंसी न लेगा। अब यहाँ आप जाइएगा बाजार में, किसी को डॉलर दीजिएगा तो थोड़े डॉलर ले लेगा, बोलेगा भाई मैं इसका क्या करूँगा, अब मुझे इतना समझ नहीं है, मैं बैंक कहाँ कहाँ जाऊँगा इसको चेक चेंज कराने, डॉलर पर स्टिक। तो मेरे पास डॉलर का पैसा होना अलग चीज़ है कि पैसा है, लेकिन किस करेंसी में। अब यहाँ के जो बिजनेस हैं वो तो मुझसे रुपया ही मांगेंगे, लेकिन जो फॉरेन के आप जैसे हैं, वो आपसे रुपया थोड़े लेंगे, डॉलर लेंगे, वो आपसे डॉलर लेंगे। तो यही हाल हुआ था हमारे देश का कि चूंकि हमारा एक्सपोर्ट वगैरह काफ़ी कम हो गया था, बिजनेस इस तरह का हो गया था कि हम लोग के पास डॉलर बचा नहीं था।
तो भाई आपको कोई बिजनेस क्यों करेगा आपकी इकोनॉमी के साथ, आपके देश के साथ? सबको पेमेंट चाहिए डॉलर में, बोलेगा डॉलर है तो दीजिए, नहीं तो भाई हम किसी और को देंगे, आपको किस लिए देंगे? तो हाल ये हुआ था कि हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर बहुत कम रह गए थे सरकार के पास, और ऐसे में क्या होता कि सभी कंट्रीज अपना ट्रेड रोक देते हमारे देश के साथ, क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट लेते हैं। देखिए, ये सब मैंने आपको बताया कि क्रेडिट पर होता है बिजनेस। जैसे आज मान लीजिए, आज मैं हूँ, बाजार में इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई लखपति हैं, करोड़पति हैं, तो आज मैं कहीं भी बिजनेस करूँगा, लेन देन होगा क्रेडिट पर, तो सब आराम से हाँ सर ले जाइए ले जाइए, कर दीजिएगा पेमेंट। कल को जहाँ इंफॉर्मेशन फैल गई कि भाई इनका तो हालत खराब, बिजनेस डूब गया, घाटा लग गया, इनके पास पैसा वैसा नहीं है, तो मैं जाऊंगा किसी से बिजनेस करने, तो कोई मुझे देगा क्रेडिट? कोई नहीं देगा, बोलेगा इनके पास पैसा नहीं है, इनको तो देंगे कहाँ से चुकाएंगे? कोई नहीं करता है। तो जब तक आपका वैल्यू होता है, आपके पास एक रिजर्व होता है, तब तक आपको हर कोई क्रेडिट देने के लिए तैयार है। लेकिन जहां आपका वो रिजर्व गया, इंफॉर्मेशन फैला कि आपका रिजर्व नहीं है, आपके पास नहीं है पैसा, आपको कोई क्रेडिट नहीं देगा। तो यही हाल हुआ भारत के साथ कि जब ये सब जगह इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि भाई नेचुरल है, जब होता है पब्लिक ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन होता है, हर देश में व्यापार चल रहा है, तो उसको बताना होता है ये टाइम टू टाइम कि मेरा कितना है, कितना हमारे पास, सब कुछ सबको पता होता है। तो जब ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, तो ये पेमेंट करेगा भारत सरकार कैसे? तो ये हाल हुआ कि एक हफ्ते तक का हमारे पास बच रहा था, उससे ज़्यादा आगे का हमारे पास पैसा नहीं था डॉलर, एक हफ्ते तक हम सस्टेन कर सकते थे इकोनॉमी। तो ऐसे समय में फिर, ताकि हमारे यहाँ डॉलर्स आए, बढ़े, हमारे यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस हो, जाके जो है तब मनमोहन सिंह ने कड़े कदम उठाए थे, कई सारे नियम कानून बदले थे, और उस समय ही जो किया सुधार, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट कंपनियों को फुल छूट दे दिया कि जहाँ जिसको जो करना है करिए, नियम कानून सारे जो है आसान कर दिए गए, लिबरलाइजेशन हुआ, और इनके नतीजे के तौर पर हुआ कंपनियां आने लग गई, यहाँ ट्रेडिंग करने लग गई, हमें क्रेडिट मिलना शुरू हो गया, हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू हो पाया। तो ये हाल था, ठीक है। और ये हाल इसलिए था कि 91 के पहले कई सरकारें जो आई थी, वो अपना कुछ कुछ, कोई कुछ नाम पे आ गया, कोई जो है रिजर्वेशन के नाम पे आ गया, कोई कुछ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, आर्थिक हालत देश की खराब सब कर रहे थे। क्या कर रहे थे? घाटे में रह के जो है अपना चला रहे थे काम, उधार खाता लेके, सब उधार ले लेके जितना पैसा था सरकार के पास, उसको खर्च कर करके खाली वोट जुगाड़ने में लगे हुए थे। तो यही देखिए कहा जा रहा है, देखिए इस लाइन में फर्स्ट लाइन जो है कि द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। तो इकोनॉमी का बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ था 80s में, जिसके कारण हमारे देश में 91 में फिनेंशियल क्राइसिस आया था। फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज and for its administration, the government generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises। कहा जा रहा है, सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि अपनी कई नीतियों को, अपने प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाती है? सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो वो टैक्स लगाती है, टैक्सेशन से, या पब्लिक सेक्टर से जो उसकी कमाई होती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार की कंपनियां हैं ना, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी, सेल, गेल, बहुत सारी कंपनियां हैं, पीएसयू जिनको आप कहते हैं। तो उनसे सरकार की इनकम होती है, उससे जो पैसा आता है, या टैक्स से जो पैसा आता है, इन्हीं से सरकार अपना सारा काम करती है। यही कहा जा रहा है कि फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज and for its administration,
the government generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises. When expenditure is more than the income, the government borrows to finance the deficit from banks, from people within the country and from international financial institutions. तो देखिए, आपको बताया जा रहा है, सरकार का यहाँ कामकाज बताया जा रहा है कि सरकार कामकाज के लिए पैसा कहाँ से लाती है? टैक्स से, और जो इसका कंपनीज चलती हैं पीएसयू, उनसे जो कमाई होता है उनसे। कई बार क्या होता है कि सरकार की कमाई जितनी होती है उससे ज़्यादा वो खर्च कर देती है। ये सब आपको हम बजट में बता चुके हैं। तो कई बार जो बजट होता है क्या होता है, अगले साल का लेखा जोखा होता है कि अगले साल में हम कितना खर्च करने जा रहे हैं, कितना हमारा इनकम होने जा रहा है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि इनकम है उससे ज़्यादा खर्च है कि कम खर्च है, क्या है। ठीक है, तो इसी पर आपको बताए थे कि जब हमारा बजट में, बजट क्या है पहले तो समझिए, बजट आपको बताए थे कि आने वाले साल में, यानी जो साल में बजट पेश हो रहा होता है वो साल का, उस साल में कितना हमारा खर्च होगा और कितना हमारा इनकम होगा, इसी का पूरा डिटेल स्टेटमेंट होता है। अब बजट में अगर हमारा खर्च इनकम से ज़्यादा होता है, इनकम कम है, आमदनी कम, खर्च ज़्यादा, तो उसमें चूंकि घाटे, उसको हिंदी में कहते हैं घाटे का बजट, क्योंकि घाटा है, कमाई कम है और खर्च ज़्यादा है तो घाटा है, उसको कहते हैं घाटे का बजट या डेफिसिट बजट का। और जब कमाई ज़्यादा है, खर्च कम है, तो उसको कहते हैं फायदे का बजट यानी सरप्लस बजट। जब सरप्लस हमारे पास बचता है, यानी कमाई ज़्यादा हुई, खर्च कम किया, तो जनरली सरकारें क्या करती हैं कि चूंकि उनको डेवलपमेंट करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, बहुत सारे काम, इसके कारण उनका जो खर्च है वो ज़्यादा हो जाता है इनकम से। और ऐसे में जो उनको खर्च ज़्यादा, यानी जितना का घाटा हो रहा है, यानी उतना पैसा कम पड़ रहा है, उसको वो लोग कहीं से उधार लेके अपना मैनेज करते हैं, फिर उसको चुकाया जाता है उधार। तो इसी को यहाँ आपको कहा जा रहा है कि when expenditure is more than income, the government borrows, उधार लेती है, to finance the deficit, जो डेफिसिट है, जो घाटा है, उसको भरने के लिए उधार लेती है। किससे? फ्रॉम बैंक्स, बैंकों से, फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री, या देश के अंदर कुछ लोगों से जो लोग पैसा वगैरह देने का काम करते हैं, उनसे भी सरकार उधार ले सकती है, हैं? हाँ, तो देखिए, सरकार भी उधार लेती है, मैंने बताया। तो अगर जैसे बजट है, बजट में हमारी कमाई कम हो रही है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि भाई एक्सपेंडिचर आप करिएगा कहाँ से? आप लिख तो दिए कि इतना करेंगे इतना करेंगे, मान लीजिए आप बजट पेश किए, उसमें आप दिखा रहे हैं कि इनकम तो हमारी 800 करोड़ है, लेकिन हमारा खर्च जो है वो 1200 करोड़ जा रहा है। तो 1200 करोड़ जा रहा है जबकि इनकम 800 करोड़ है, तो आप 400 करोड़ लाइएगा कहाँ से? खाली लिख देने से पैसा थोड़े मिल जाएगा। आप लिख रहे हैं कि खर्च हम इतना करना चाह रहे हैं साल में 1200 करोड़, जबकि हमारी आमदनी 800 करोड़, तो बाकी के 400 करोड़ कहाँ से आएंगे? तो सरकार वही सोचती कि चलो उधार ले लेंगे। किससे? किससे उधार लिया जाएगा? जैसे बाकी लोग लेते हैं बैंक से, तो बैंक से उधार ले सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, चाहे आरबीआई से ले, एसबीआई से ले, किसी बैंक से ले, या बाहर के किसी बैंक से ले, तो वही कहा जा रहा है यार, तो बैंक से लेती है। और पीपल विद इन द कंट्री, कुछ लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे उधार लेती है, चाहे तो जो भी लोग, मतलब चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फाइनेंशियर हो, यानी जो पैसा देते हैं, उनसे ले सकती है देश के अंदर, या एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या विदेशी ऐसे जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो पैसे लेन देन का काम करती है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा हमारा जो पैसा देती थी हमें
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बैंक है इंटरनेशनल, एशिया का है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। एडीबी शॉर्ट में कहते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला, फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में। तो मनाली है हिमाचल में मनीला तो फिलीपाइंस में, फिलीपींस। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे कई जगह होता था कि सड़क बनाना है, सड़क बनाने के लिए पता चला 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो सरकार के पास 500 करोड़ है, तो 300 करोड़ वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लेती थी। फिर और भी कई भैया वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक देती थी। अभी और भी कई बैंक बने हैं, एशिया में ही बना है इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIIB। कई सारे मतलब बैंक इंटरनेशनल भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो पैसा लेन देन का काम करते हैं। तो जो है चाहे तो उनसे ले सकती है, तो सरकार भी लोन लेती है। देखिए किससे, या तो बैंक से, या देश के अंदर लोगों से, फाइनेंशियर से, या जो विदेशी संस्थाएं हैं, बैंक हैं, उनसे ले सकती है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, उससे बैंक है वो भी, या एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या और ऐसे कई संस्थाएं होती हैं, वो सबसे सरकार भी लोन लेती है ताकि अपना खर्च कर सके। इन 1991 इंडिया met with an economic crisis relating to its external debt। तो 91 में क्या हुआ था कि इतना ही लोग उधार लेके पहले खर्च कर डाले थे कि अब उधार चुकाने का हमारे पास पैसा नहीं था, डॉलर नहीं था। तो संकट आ जाता, कोई भी देश कहता कि भाई आप उधार नहीं चुका सकते हैं, तो हमारा फिर वो चाहे तो कब्जा भी कर सकता था हम पर। The government was not able to make repayment on its borrowings from abroad। बोले कि जो बाहर से कर्ज वगैरह लिया था उसका पैसा चुका नहीं पा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच इज टू जनरली मेंटेन पेट्रोल एंड अदर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जैसे पेट्रोलियम का होता है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोलियम का इंपोर्ट में होता है कि वीकली या डेली क्लियर करना रहता है पेमेंट, ठीक है। तो उन सब का, क्योंकि पेट्रोलियम का इंपोर्ट रुक जाता है, अगर देश कहता है कि भाई आपका कर्ज है, आप नहीं दे पा रहे हैं पैसा, आपको पेट्रोलियम नहीं देंगे, तो पता चलता पूरा देश का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये सब कई ऐसे पेट्रोलियम या कई ऐसे ट्रेडिंग होता है जिसका रेगुलर ट्रेडिंग होता है चीज़ों का, तो हमारे पास पैसा रह नहीं गया था, डॉलर रह, फॉरेन एक्सचेंज नहीं रह गया था कि हम कर्ज चुका पाते, जिससे जो ट्रेडिंग होता है उसका। वही देखिए कहा जा रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ कि द गवर्नमेंट was not able to make repayment, repayment मतलब कर्ज चुकाना, to make repayment on its borrowings from abroad, foreign exchange reserves which is to generally maintain petrol and other important items, यानी जो आइटम्स हम लोग डेली का डेली इंपोर्ट होता है, तो उनका पेमेंट वगैरह क्लियर करने के लिए हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी डॉलर कितना है हमारे पास, या जिस पाउंड है, या जो भी है जिसमें डीलिंग होता है, उसका हम रिजर्व मेंटेन रखते हैं। तो ये जो है मेंटेन अदर आइटम्स ड्रॉप्ड टू अ लेवल दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट, यानी इतना कम हो गया था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कि 15 दिन का भी हम मेंटेन नहीं कर पाते, 15 दिन भी हमारी इकोनॉमी नहीं चल पाती। फोर्टनाइट बोलते हैं 2 वीक्स को, 14 डेज। द गल्फ वॉर ऑफ 1991 डीपेंड द क्राइसिस, और उसी समय संयोग से गल्फ वॉर हो गया था, खाड़ी युद्ध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वहाँ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वहाँ कुवैत पर अटैक हो गया था, कई देश शामिल हो गए थे लड़ाई में, गल्फ वॉर हो गया था। उससे ये हमारा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ही हमें सप्लाई करती थी, गल्फ कंट्रीज ही हमें पेट्रोलियम सप्लाई करती थी, और जब वहीं लड़ाई छिड़ गई तो हमारी समस्या और बढ़ गई। एक तो हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं, और जो देने वाला है वो लड़ रहा है किसी और से। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स।
तो जब लड़ाई चल रही थी तो हमारी जो आम इस्तेमाल की चीज़ें थी, जो जो रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें दिन भर में, उनके दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे। दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे तो इससे समस्या, कंपाउंडेड वही बता रहे हैं, कंपाउंडेड मतलब और बढ़ जाना। जैसे कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े ना, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उसमें। तो कंपाउंडेड वर्ड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, इसीलिए कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट। वो कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले से तो समस्या हमारे यहाँ चल रही थी कि भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था, उससे और क्या है, दूसरे एक तरफ तो लड़ाई वहाँ चल रही थी तो उससे और समस्या बढ़ गई, और क्या हुआ कि हमारे यहाँ चीज़ों के दाम बढ़ने लगे तेज़ी से। ये सब समस्या को और बढ़ा दिया। इसेंशियल, देखिए, बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल जो जरूरी चीज़ें थी उनका दाम तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इससे समस्या और गंभीर हो गई थी। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट to introduce a new set of policy measures which changed the direction of our development strategies। तो उस समय सरकार ने कुछ नई नीतियां अपनाई, कुछ नए नियम कानून लागू किए, अपना तरीका रवैया बदला पहले से कि ऐसे नहीं चलेगा इकोनॉमी। उसी समय मनमोहन सिंह थे और यहाँ थे नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव भी बड़े ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री थे। तो उस समय चूँकि कांग्रेस में भी ये एकता ठीक से नहीं थी और नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी सबका ठीक ठाक नहीं चल रहा था आपस में, तो बड़ी ख़राब हालत हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने समझदारी दिखाई और उन्होंने, समझिए कि जो देश के दरवाजे बंद हो गए थे विदेशी कंपनियों के लिए, उन पर तरह तरह का रोक लगा दिया गया था, बहुत तरह के कानून बना, सबको उन्होंने कहा कि हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं देश का इकोनॉमी चले तो आपको, तो नरसिम्हा राव ने कहा ठीक है, आपको जो करना है करिए, देश की हालत सुधारिए। तब मनमोहन सिंह ने, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये इम्प्लीमेंट किया जो है, जिससे हमारे विकास की दिशा बदल गई, विकास का रास्ता बदल गया। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, आर्थिक सुधार, सुधार का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ, ये हमारे देश के को लेके अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स दोज पॉलिसीज ऑफ 1991 थ्रू विच देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड कंपटीशन। तो कहा जा रहा है कि जब हम 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, क्या समझते हैं, क्या है उसका मतलब, तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा मतलब है वो 91 में लागू की गई वो नीतियाँ, पॉलिसीज, थ्रू विच, जिससे कि हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, अपना इफ़िशियंसी बढ़ा सके, अपना प्रॉफिट बढ़ा सके और हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़ा सके। देखिए हुआ क्या था उससे पहले कि सरकारें खाली वोट जीतने के चक्कर में इकोनॉमी डुबाते जा रही थी, कर्जा ले ले के लोगों को खुश कर रही थी, कंपनियों में कोई कंपटीशन नहीं था, सामान जैसे तैसा बन रहा था, करे बेचो बेचो कैसा है, वो बस अपना घाटा से खाली, क्योंकि उस समय समाज का मुद्दा बहुत ये माथा पर लोगों के चढ़ा हुआ था, खाली रिजर्वेशन और बहुत तरह का चीज़ चल रहा था, तो इकोनॉमिक पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण इकोनॉमी हमारी डूब रही थी, घाटा लग रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर से तो लोग भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। देखे कि जब सरकार खाली, जैसे आजकल कैसे है, अभी क्या है, सब रोजगार धंधा भूल के खाली मोदी, हिंदू और भगवान राम मंदिर, यही सब चल रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं, जब पैसा है नहीं करिएगा क्या, कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, तो राम नाम जपिए बैठ के, वही हाल अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी है कि कम से कम मोदी अभी इकोनॉमी को टाइट कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट है। उस समय के जो थे वो मिलजुल के, मिली जुली सरकार जैसे तैसे बना के आ रहे थे, जिसको मतलब सब अपने अपने चक्कर में थे, कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाए,
उसके लिए कि इससे मिल जाओ, उससे मिल जाओ, एक आध साल रह गए, फिर उनकी सरकार गिर गई। तो अभी सरकार का जो है खाली अपना सरकार बनाने में लगी हुई थी और देश को जाए भाड़ में वाले हाल हुआ पड़ा था। तो इसके कारण भाई लोग भी उसी तरह से हो गए थे, काम नहीं कोई ठीक से कर रहा था, देश की इकोनॉमी चौपट हो रही थी। तो ऐसे समय में जो उस समय नीतियां लागू की गई जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, हमारा इफ़िशियंसी बढ़ सके, हमारा प्रॉफिट बढ़ सके और हम कंपटीशन फिर से बढ़ा सकें, क्योंकि सरकारी जितनी कंपनियां थी वो सब उस समय क्या हो गया था कि भाई मनमौजी हो गई थी कि भाई देख रही थी जब सरकारें अपना कोई ध्यान नहीं दे रही तो हम लोग को क्या काम करने से, अपना ऐश काटो, सैलरी तो अपना मिल ही रही है, नौकरी मिल ही रही है सरकारी, तो घाटा सब लगा रहे थे मिलके सरकार को, ये सब हो रहा था, इसलिए ये करना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको हमने बोला। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोब। देखिए अब हुआ क्या, सरकारी कंपनियों को अपना भाई बोले ना, जैसे सरकारी एम्प्लॉय है, क्या है उसको डर नहीं होता है किसी चीज़ का कि भाई नौकरी का क्या हो, अपना नौकरी है मेरा, रहेगा, सैलरी मिलेगा, काम करना है करो, नहीं करना है बैठे रहो। लेकिन आज कंपटीशन बढ़ गया है, आज टाइट मैनेजमेंट हो गया है कि भाई नौकरी नहीं ठीक से काम नहीं करिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट किया गया कि ये चीज़ आपको करके दिखाना होगा, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, सस्पेंड हो जाइएगा, सैलरी रुक जाएगा। आज देखिए टीचर्स को कितना टाइट किया हुआ है। अभी कह दिया है लेटेस्ट में कि जो ई शिक्षा कोष ऐप है, बहुत लोग जानते हैं, उस पर अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, अपना कुछ कुछ अपना फायदा निकाल रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो कह रही सरकार कि अगर जो उस पर नहीं बना होगा अटेंडेंस, उसको अगला महीने का सैलरी नहीं जाएगा। अब देखिए पढ़ाई छोड़ के दिन भर सब अटेंडेंस बनाने में लगा हुआ है टीचर। अभी जब से लागू हुआ है 25 तारीख से पिछला, पढ़ाना लिखाना छोड़िए, टीचर खाली जगह जगह घूम के कभी बिल्डिंग के छत पे चढ़ता है, कभी गेट के पास जाता है, कभी उधर खेत में जाता है कि कहीं से सिग्नल आए और कहीं से लोकेशन ले, जीपीएस की अटेंडेंस बन जाए। अटेंडेंस बन तो कार्टून वगैरह भी चल रहा था कि कहीं कोई छत पर चढ़ा हुआ है, कोई टीचर कोई इधर कोने में है, कोई उधर, सब जगह लगा हुआ है कि अटेंडेंस कहीं से बन जाए। क्योंकि क्या कह दिया कि आपको अगला महीना का सैलरी तभी जाएगा जब आपका अटेंडेंस बना हो। तो आज देखिए जब सैलरी पर बात आ गया तो सब अब पढ़ाई छोड़ के अटेंडेंस बनाने में लगा हुआ है, पहले अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं था। तो यही है कि जब तक कंपटीशन नहीं करिएगा, अब पहले क्या है कि लोग थे अपना आ रहा था सैलरी जा, तो कोई पढ़ाने लिखाने कोई मतलब नहीं, चल रहे थे, नौकरी चल रही थी सब। वही हाल हो गया था सरकारी कंपनीज का, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश के महारत्न नवरत्न क्या क्या कहे जाते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड और कितने सारी इस तरह की जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, गेल, सेल, भेल, रेलवेज, एयर इंडिया, तो पहले जो थी, अब तो एयर इंडिया ख़त्म हो गई। तो इस तरह ये सब जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज थे ये बिल्कुल निकम्मे हो गए थे, क्योंकि देख रहे थे सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, सब तो अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं, खाली रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स और ये सब चल रहा है। तो ऐसे समय में कंपटीशन को बढ़ाना ज़रूरी था, नहीं कंपटीशन फेस करते तो फिर प्राइवेट वाले, ये सरकारी लोग काम नहीं करते। देखिए मोदी ने ये जरूर सरकार में सुधार लाया कि लोग अभी टाइट किया, फिर से बोला अब 5 मिनट की 10 मिनट का खाली दिया है, 9 बजे आपको है, पहले 9:30 तक लोग आते थे, वो भी कर दिया कि आपको 9:15 तक, 9:10 तक रहना, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा। तब देखिए सबकी हालत ख़राब है फिर से सेंट्रल एम्प्लॉइज और सब। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसी नीतियाँ सरकार ने उस समय लाई, नियम कानून लाए कि जिससे देर इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, efficiency, profit and competition. Economic reforms is based on policies of liberalization. आसान बनाया कानून को ताकि प्राइवेट को पहले काम ही नहीं करने देते थे, और गवर्नमेंट को तो ऐस थी कि अपना करो चाहे नहीं करो, तो प्राइवेट को अलाउ कर दिया कि तुम भी करो भाई, गवर्नमेंट नहीं करेगा प्राइवेट तुम करो, कंपटीशन होगा दोनों में। तो प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, नियम कानून। पहले सरकारी क्या है, खाली इसी में दौड़ा के टाइम पास करते थे, जाइए
साहब नहीं है, छुट्टी पर है, साइन नहीं हुआ है। वो 6 महीना ऐसे ही दौड़ाते रहते थे आदमी को, साहब नहीं, साइन नहीं हुआ है, साइन नहीं हुआ है। तो आज नियम कानून आसान कर दिया गया कि आपको जानकारी देना होगा कि कौन सा कहाँ तक क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। नियम कानून आसान हो गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हर जगह प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया जो पहले खाली रिजर्व रहता था सरकारी पे। एंड ग्लोबलाइजेशन, और इससे क्या हुआ कि बाहर की जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे यहाँ आना शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दी, उससे कंपटीशन बढ़ा, इफिशियंसी बढ़ा लोगों का। इट इज दस ऑल्सो नोन एज LPG इन अदर वर्ड्स। इसको हम LPG शॉर्ट में कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और इन दोनों के आउटकम के रूप में हुआ ग्लोबलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, जो 91 में लाया गया था। दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम उस समय न्यू इकोनॉमिक, क्योंकि नई नीति लाई गई थी तो इसको कहते थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, शॉर्ट में NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको कहते थे। LPG आपको अच्छे से समझा चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हम पहले ही आपको, तो पुराने वीडियो जो हम आपको बताए थे उसमें देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, समझाया था मैंने उदाहरण से आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनके क्या, आखिर क्यों ये लाए गए, क्या इसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एफिशिएंसी, यानी अच्छे से काम, जितना पता चला जितना देर में काम कर रहे हैं उससे पहले जो काम करना था 5 घंटा में कर रहे थे, अब उसको 2 घंटा में करिए भाई, जल्दी जल्दी काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी। नंबर 2, टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, वो इंटरनेशनल कंपनियों से भी compete कर सके, ऐसा उसमें कंपटीशन बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना। नंबर 3, देखिए जैसे अब हमारे यहाँ की कंपनी है बजाज, उषा, जो भी कंपनी है, अब जो भी हमारे यहाँ की कंपनी है किसी भी फील्ड में, तो जब वो बाहर सामान उनका बिकेगा तब ना हमें वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। जैसे MDH, एवरेस्ट है, इनके मसाले दुनिया भर में बिकते हैं, अमेरिका बिकते हैं, तब ना वहाँ से हमको डॉलर में पेमेंट आता है। अभी आपको बताया कुछ दिन पहले ही MDH और एवरेस्ट को USA ने बैन कर दिया था कि इनका सामान यहाँ नहीं बिकेगा, क्योंकि इनका क्वालिटी में बहुत सारा मिलावट है, केमिकल वगैरह। तो फिर सरकार ने बात किया उस पर, वहाँ की सरकार से। तो जैसे हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है वो बाहर बिकेगा तब ना हमें डॉलर की कमाई होगी। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बाहर कब बिकेगा, जब आपका प्रोडक्ट उस लायक होगा जो वहाँ के मार्केट में बेचा जाए। मैं बता रहा हूँ, जैसे वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ बिकते हैं लेकिन वो विदेश में अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ का बहुत टाइट है क्वालिटी चेक। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे। हम लोग बहुत सारा अनाज खा लेते हैं जिसमें केमिकल रहता है, वो लोग नहीं उसको परचेज करते हैं कि नहीं आपके अनाज में केमिकल बहुत रहता है, हम लोग नहीं, यहाँ नहीं बेच सकते। फिर हम लोग खा रहे हैं। बहुत सी दवाएं हैं जो विदेशों में बैन हो चुकी हैं कब की, और यहाँ डॉक्टर दे देता है। डॉक्टरों सब वैसा ही जाहिल है। हम खुद कई बार दे दिया, हम डॉक्टर को कुछ नहीं बोले, लेकिन हम कहे कि हम दवा नहीं लेंगे, हम अपना दवा ले लेंगे। हम जान रहे हैं कि वो दवा बैन हो चुका है बाहर में, यहाँ भी बैन हो चुका है, बल्कि इंडिया में भी बैन हो चुका है, फिर भी दे देते हैं। तो देखते हैं कि छोटे मोटे एरिया में कौन इतना पेशेंट जान रहा है क्या है नहीं, जो उनके पास स्टॉक पहले का पड़ा हुआ है या जो दवा जैसे चल रहा है वही दे रहा है, जबकि बैन हो चुका है दवा, क्योंकि उसका नुकसान है ज़्यादा, दे देता है डॉक्टर सब। कितने लोग हैं हमारे तरह जान रहे हैं कि क्या दवाएं बैन है, क्या दवाएं जो है अभी बिक सकती है यहाँ, और बाहर तो बहुत सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं।
तो बहुत से, जैसे बोले कि MDH, सोचिए हमारे यहाँ का जो टॉप ब्रांड है MDH और एवरेस्ट, और दुनिया भर के राकेश मसाले और ये मसाले वो मसाले तो बहुत बिक रहे हैं, और वो जो है बैन कर दिया वहाँ कि नहीं, आपका में केमिकल्स है, हमारे यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका सामान बिकेगा। जब देखिए मोदी ने क्या भाषण दिया था, लोगों को समझाया, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्लोगन दिया था, मेक इन इंडिया। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, बोला जीरो इफेक्ट मतलब जीरो साइड इफेक्ट, जिसका कोई नुकसान ना हो, ऐसा सामान बनाओ, और जीरो डिफेक्ट जिसमें कोई कमी भी ना हो, जो वर्ल्ड की और क्वालिटीज जो टॉप की हैं उनके बराबर वैसा उसका क्वालिटी, ना कोई कमी हो ना उसका कोई नुकसान, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, आपका बिकेगा। तो मोदी ने उसको स्लोगन, मोदी को तो भाषण में स्लोगन देना आता है, नारा बना, तो बोला नो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ऐसा सामान बनाइए। जब सामान बिकेगा, बनेगा ऐसा, तो भाई दुनिया में लोग खरीदेंगे, बिकेगा ही, और बिकेगा तो उससे हमें डॉलर आएगा। तो समझ गए। तो ये आपको बताया कि इसलिए ऐसा किया गया टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। नंबर 2 पॉइंट जो है कि किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हमारा बजाज है, अब बजाज अच्छा बनाएगा सब चीज़, तब ना उसका बाहर में बिकेगा। बाहर जहाँ फिलिप्स का अवेलेबल है, सब चीज़ का अवेलेबल है, आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, वो थोड़े बजाज का लेगा। तो जब आप उस तरह का क्वालिटी बनाइएगा तभी आपका खरीदेगा, कोई भी फील्ड में कोई भी प्रोडक्ट जो है। तो वही कहा जा रहा है कि सेकंड पॉइंट था टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। नंबर 3, मैक्सिमम यूज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। थर्ड इसका जो उद्देश्य था कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर सकें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का, लोगों को, विदेशी लोगों को यहाँ बुलाएं कि भाई आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए, तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगा डॉलर में, तो हम उससे हमारा डेवलपमेंट होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि विदेशी लोग आएंगे तो नया नया टेक्नोलॉजी अपने साथ लाएंगे भाई, तो हमारे यहाँ का भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगा, इसलिए ये किया गया था। नंबर 4, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि हमारा डेवलपमेंट का जो रेट है वो बढ़े, तेजी से डेवलपमेंट हो। नंबर 5, यूज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम कई सारे, हमें इंटरनेशनली ऐसे मतलब मौके मिलते हैं, जैसे देखिए बहुत तरह का स्कीम होता है जिससे कि आपको तरह तरह का फंडिंग में या डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। जैसे देखिए आप लोग ही पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारा ऐसा यूज़ करते हैं, चाहे तो क्या है, आपको तरह तरह का कैशबैक देता है, बोलता है अच्छा हमसे करिएगा तो इतना कैशबैक देंगे, या हमसे करिएगा तो इतना आपको जोमेटो से करने में इतना डिस्काउंट हो जाएगा, मूवी टिकट बुक करने में इतना आपको डिस्काउंट, बहुत तरह इसका स्कीम होता है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल स्कीम भी होता है कि हमारे यहाँ से लीजिएगा तो हम आपको ये चीज़ में डिस्काउंट दे देंगे, ये बहुत सारे इस तरह के हर जगह बिजनेस में स्कीम होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि यूज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कई तरह के इंटरनेशनल हमें जो स्कीम्स होते हैं, एक मैकेनिज्म होता है, उसका भी हम यूज कर सकें। जैसे एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR बोलते हैं, ये वर्ल्ड बैंक IMF में होता है, ठीक है। तो उसमें होता है कि आप इतना, अगर आपको, आपके पास ये रहेगा, एक्सचेंज रहेगा, तो आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या समझ लीजिए, ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक में आपको समझाए थे ओवरड्राफ्ट, कि मान लीजिए आपके अकाउंट में अभी 10 ही हज़ार है, लेकिन आप 15,000 निकाल सकते हैं, 20,000 निकाल सकते हैं, इतना आपको एक ओवरड्राफ्ट विड्रॉल, यानी अपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉल करने का फैसिलिटी को हम बैंक में कहते हैं ओवरड्राफ्ट, उसी को कहा जाता है वहाँ SDR कहते हैं, एक तरह से, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, हालांकि थोड़ा सा उसमें टेक्निकल है।
तो ये सब मैकेनिज्म होता है कि जैसे आपका वहाँ अकाउंट में, जैसे हम लोग भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक में हम लोग के देश का अकाउंट होता है, या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हम लोग का कुछ अकाउंट होता है जिसमें पैसा हमारा कुछ जमा होता है, उसके आधार पर ट्रेडिंग होता है। तो उसी में एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ड्राइंग मतलब निकालना पैसा, स्पेशल राइट्स मतलब विशेष तरह से। तो उसमें होता है कि हाँ आप ऐसा ऐसा है तो आपको इतना ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म का जो है फ़ायदा उठा सकता देश अपने विकास के लिए। नंबर 6, टू इम्प्रूव एंड डेवलप the financial sectors so that they are able to fulfill the demands of the economy। और हमारे यहाँ का जो फिनेंशियल सेक्टर था, यानी पैसे का कारोबार, पैसे का लेन देन, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब, उसको खोलना था, उसको सिंप्लीफाई करना था, ताकि तेजी से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकें, निकाल सकें, ट्रेडिंग कर सकें। तो इसको सुधार करना था, डेवलप करना था। आज देखिए, आज आप एक फोन कॉल करते हैं आपका बिजनेस हो जाता है, ये इतना शेयर खरीद लो, इतना शेयर बेच दो, उसका इतना से, तो तुरंत। तो इसका कारण है कि इतना आसान हो गया हर चीज, नियम कानून। तो यही कहा जा रहा है, टू इम्प्रूव एंड डेवलप द फिनेंशियल सेक्टर सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमी। जो यहाँ डिमांड है लोगों का, जिस तरह का, चाहे लोगों का, कंपनियों का, उसको पूरा कर सके, उस हिसाब से हमारा फाइनेंस सेक्टर डेवलप हो सकता है। और नंबर 7, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक एंड सोशल सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार, सरकारी कंपनी सब। सोशल सेक्टर जो हमारा सरकारी विभाग वगैरह जो भी था, जो समाज के लिए काम करता था। तो इन सब का परफॉर्मेंस में सुधार करना, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी बिजली विभाग, मतलब जो भी सरकारी है, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में हो, चाहे वो सोशल के फील्ड में हो। सोशल के फील्ड में होगा जैसे इंश्योरेंस में, सरकारी इंश्योरेंस भी होता है, ESIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करता है। उसी तरह आपका जो है हॉस्पिटल्स वगैरह जैसे हैं, जितने वो आपका वो देख रेख करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो भी सोशल सेक्टर में थे या इकोनॉमिक फील्ड में थे, गवर्नमेंट कंपनीज जितने थे, तो उन सब का परफॉर्मेंस को सुधारना, क्योंकि ये बिल्कुल चौपट काम कर नहीं रहे थे। देखिए आपका रेलवेज का क्या हाल था पहले, PSUs का क्या हाल था, आपका हॉस्पिटल्स का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था। तो इन सब को जो गवर्नमेंट की थी उनको भी सुधार करना, इसके लिए भी ये सब किया गया, LPG लाया गया। तो ये हमने देखे 7 पॉइंट, 7 ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए ये रिफॉर्म्स किए गए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में।